जीसस। पिता परमेश्वर, जब हम पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको पवित्र वचन की गहराई समझा, उसके भेद, उसके रहस्य हमारे जीवन में खोल परमेश्वर पिता। उस गहरे रहस्य को, उस भेद को बिना जाने हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा तो सारे सत्य को, संपूर्ण सत्य को हम में प्रकट करने के लिए भेजा गया है। हमारे अंदर आज पढ़ने वाले वचनों को, उसके भेद, उसके रहस्य, उसकी मिठास, उसकी सच्चाई, उसका वजन, उसका ताकत, उसकी शक्ति, उसके काम हमारे जीवन में आज खोल कर दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। आज 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे। रोमन्स 3 चैप्टर 1 वर्स से 31 वर्स, सैम्स 42 चैप्टर, 43 चैप्टर, 44 चैप्टर, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 31 वचन, भजन संहिता 42 अध्याय, 43 अध्याय, 44 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 31 वचन, रोमन्स 3 चैप्टर 1 वर्स से 31 वर्स हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से। The Jews' prerogative not made void by the unbelief of some, none justified by the law, but all by God's grace. First verse से पढ़ेंगे। What advantage then hath the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when they are judged. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous, who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid for them. How shall God judge the world? For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory, why yet am I also judged as a sinner? And not rather as we be slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil, that good may come, whose damnation is just. What then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Yes, Father. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre with their tongues. They have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in the sight, for by the law is the knowledge of sin.
But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also, seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. रोमियो की पत्री 3 अध्याय पहले वचन से 31 वचन। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 31 वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतना का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है, और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहरना ठीक है। कोई धर्मी नहीं। 9 वचन से आगे, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उसके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। विश्वास द्वारा धार्मिकता। 21 वचन से आगे,
परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। Psalms 42, 43, 44 हम पढ़ेंगे। Thirsting for God in trouble. To the chief musician Maschil, for the sons of Korah. First verse से पढ़ेंगे। As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my mute day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holy day. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Harmonites from the hill Mizar. Deep calleth unto deep at the noise of thy water spouts. All thy waves and thy billows are gone over me. Yet the Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life. I will say unto God, my rock, why hast thou forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, Where is thy God? Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Psalms 43. David praying to be restored to the temple, promises to serve God joyfully. First verse say,
Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation. O deliver me from the deceitful and unjust man, for thou art the God of my strength. Why dost thou cast me off? Why go of mourning because of the oppression of the enemy? O send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Psalms 44. The church in memory of farmer favors complaints of her present evils. To the chief musician for the sons of Korah, Maschil. First verse say, we have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work thou didst in their days in the times of old, how thou didst drive out the heathen with thy hand and plantedst them, how thou didst afflict the people and cast them out, for they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them, but thy right hand and thine arm and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Thou art my king, O God. Command deliverances for Jacob. Through thee will we push down our enemies. Through thy name will we tread them under that rise up against us. For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me. But thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that hated us. In God we boast all the day long, and praise thy name forever, Selah. But thou hast cast off and put us to shame, and goest not forth with our armies. Thou makest us to turn back from the enemy, and they which have us spoil for themselves. Thou hast given us like sheep appointed for meat, and hast scattered us among the heathen. Thou sealest thy people for naught, and dost not increase thy wealth by their price. Thou makest us a reproach to our neighbors, a scorn and a derision to them that are round about us. Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people. My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me. For the voice of him that reproacheth and blasphemeth by reason of the enemy and avenger. All this is come upon us, yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant. Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way. Though thou hast sore broken us in the place of dragons, and covered us with the shadow of death, if we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange God, shall not God search this out? For he knoweth the secrets of the heart. Yea, for thy sake are we killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Awake, why sleepest thou, O Lord? Arise, cast us not off forever. Wherefore hidest thou thy face, and forgettest our affliction and our oppression? For our soul is bowed down to the dust, our belly cleaveth unto the earth. Arise for our help, and redeem us for thy mercy's sake. भजन संहिता 42, 43, 44 वचन पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा भाग, भजन 42 से 72, निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना।
प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का मश्किल 42 अध्याय पहले वचन से। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही मैं, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूंगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से छेदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। भजन 42 का शेष भाग 43 अध्याय पहले वचन से। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का मश्किल 44 अध्याय पहले वचन से। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपनी द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है।
हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मन माने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तो धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण। यह सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरे वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। तो भी तूने हमें गिदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और इन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 11 चैप्टर 37 वर्स से 44 वर्स, जजेस 2-3 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 37 वचन से 44 वचन तक और न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय 3 अध्याय। जब 2 साल का बाइबल रीडिंग, 2 years बाइबल रीडिंग हम पढ़ेंगे, अपने अकेले में व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। इन वचनों के अंदर से परमेश्वर हमसे जो बातें करेगा उसके नोट्स बना लेंगे। उन वचनों में हमको जो परमेश्वर करने के लिए कहता है वैसा हम करेंगे और हम जानते हुए कि हम हृदय की व्यवस्था में चल रहे हैं, ना कि हम वो जो इस्राएलियों को दिए हुए नियम व्यवस्था के अनुसार, हम उसके अनुसार नहीं, लेकिन हम विश्वास की व्यवस्था के अनुसार, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। तो हम जो विश्वास आत्मा व्यवस्था में जो बैठता है वैसा हमने अपने जीवन में उन वचनों को लेना है और लागू करना है, उसको चलना है। वैसा करते हुए जब हम जाएंगे तो 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर के वचन और विश्वास दोनों में हम स्थिर हो गए होंगे, हम तैयार हो चुके होंगे, निखर कर आए हुए होंगे। और ऐसा बर्तन, ऐसा इंसान परमेश्वर उपयोग करता है। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है और हमने निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।